So in the previous lecture we have started with Sn, that is the sum of n terms if a given particular sequence is in GP. The nth term of the sequence is given as a r raised to n minus 1. Then r is nothing but tn plus 1 by tn. If at all you want to prove it is in GP. तो सम ऑफ एन टर्म्स जब तक कॉमन डिफरेंस था तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज एस एन एक एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और उसी फॉर्मूला में फिर थोड़े चेंजेस हमने किए और हमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मिला। लेकिन जब बात चल रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की यानी कि आर की, ठीक है, तो जीपी में पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें चेक करना है कि आर जो है वो लेस देन वन है कि ग्रेटर देन वन है। ठीक है, उसके बेसिस पर आपको सम ऑफ एन टर्म्स की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो एस एन इज नथिंग बट इफ लेस देन वन it is 1 minus r raised to n upon 1 minus r, but if it is greater than 1 then it is a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. Correct. So these were the two formulas I would say which we studied. इसके पहले हमने दोनों का ही nth टर्म सीखा है, n कैसे फाइंड करने का वो सब चीज़ें हमने सीखी हैं। ठीक है, तो एस एन माइनस वन पर भी हमने थोड़ा आज प्रैक्टिस करना है। सो two sums we have covered of your exercise 4.2, that is the first and the second sum. Today first we will practice few sums on SN and then I will go for few more topics on the same. Okay. So let us start with question number 2 of your exercise. देखते हैं क्या दिया गया है आपको। आप सभी को फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, सो द थिंग्स विल बी इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है फॉर ए जीपी GP means a sequence having a common ratio as R, correct, first term as A, and at the same point of time I can say that the nth term of this particular sequence is given as Tn is equal to A into R raised to n minus 1, and Sn is based on the value of R, whether it is less than or it is greater than. ठीक है, so let me quickly go ahead for the first bit. Value of A given to you is 2, value of R given to you is -2/3। करेगा, आपको बोला गया है फाइंड S6। S6 मतलब सम ऑफ 6 टर्म्स। ठीक है, तो अगर देखने जाएं तो A और R तो दिया ही है, साथ में उन्होंने हमें N भी दिया है। करेक्ट, तो A दिया गया है हमें 2, R दिया गया है -2/3, मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूँ इट इज लेस देन 1। करेक्ट, और अगर R का वैल्यू लेस देन 1 है तो हम SN का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? इट इज A in bracket 1 minus R raised to n upon 1 minus R, और S6 बोला है फाइंड करने, मतलब n का वैल्यू दिया है 6। So now if I find S6 then A is 2, 1 minus R यानी कि -2/3 raised to 6 divided by 1 minus R, R is again -2/3। ठीक है, तो S6 क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 1 माइनस, अब देखिए भले ही टर्म R जो है हमारा वो नेगेटिव है लेकिन इसका पावर जो है वो इवन है, और अगर इवन पावर होता है तो नेगेटिव साइन जो है बेटा वो
absorb हो जाएगा, ठीक है, द नेगेटिव साइन विल गेट एब्जॉर्ब। अभी 2 raised to 6 कितना आता है बेटा? 64। यस एवरीवन, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? 2 raised to 6 विल बी हाउ मच? 64, यस और नो? अब 3 raised to 5 होता है 243, करेक्ट। तो अगर मैं 243 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो क्या मिलेगा? 729 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ -2/3, मतलब ये हो जाएगा 1 + 2/3। Anybody having any doubts in this step beta? Anybody having any doubts in this step? Any doubts to anyone? Okay. So let us continue. I will get the sum of 6 term as 2 in bracket 729 minus 64 divided by 729 divided by 1 plus 2/3 will be 5/3. So S6 will be equal to twice 729 minus 64 will be nothing but 665 divided by 729 into this will be 3/5, ठीक है। तो 3 को तो मैं इजीली reduce कर सकता हूँ, it will be 1s are and this will be 243, correct। And we can also reduce the 5, correct। So what will be your final answer? Correct, it should be S6 is equal to, apply the table of 5 ones are 5 5s are no 5 3s are, yes or no beta? 5 3s are will be 15 and again 5 3s are will be 15. So 133 into 2 it will be 266. So answer should be 266 divided by 243. So this becomes the sum of 6 terms. This becomes the sum of 6 terms. Okay. Anybody having any doubts in this? So let us quickly jump to another sum. Sum number second. For a GP if, करेक्ट, सॉरी सेम ही क्वेश्चन था, सेकेंड बिट हमें दिया है, S5 का वैल्यू दिया है, यानी कि सम ऑफ 5 टर्म्स is given to you as 1023. Value of R given to you is 4. बोला है find the value of A. Find the value of A. ठीक है, तो R का वैल्यू given to me is 4. S5 given to you is 1023. You have been told to find the value of A. ठीक है, नाउ सबसे पहली चीज आपको R पहले देखना है कि वेदर इट इज ग्रेटर देन 1 और इज इट लेस देन 1। तो R जो है ये ग्रेटर देन 1 है, तो अगर ग्रेटर देन 1 है फॉर्मूला कौन सी लगेगी? R⁻n−1 अपॉन R−1। सो S5 ये आपको दिया गया है 1023, ठीक है। सो इट विल बी A इन ब्रैकेट R⁻n यानी कि
r raised to 5 minus 1 upon r minus 1 is equal to 1023। अभी a की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। वैल्यू ऑफ r इज 4। 4 raised to 5 minus 1 upon say 4 minus 1 is equal to 1023। ठीक है, नाउ केयरफुली ये आपको मिलेगा a 4 raised to 5। 4 raised to 5 मतलब 1 2 raised to 10। 2 raised to 10 is 1024 minus 1 divided by 3 is equal to 1023। यहाँ से आपको मिलेगा a by 3 in bracket 1023 is equal to 1023। So 1023 will get cancelled. We'll get the value of a as 3. Correct? Any doubts to anyone in the second bit, beta? Anybody having any doubts in the second bit of question number 2? Question number 2, bit number 2. Any doubts to anyone? Okay. Chalo, then let us quickly jump to this. Say question number 3. Question number 3 of the exercise. If for a GP, if फर्स्ट बिट आपको दिया है a is equal to 2, r is equal to 3, Sn is equal to 242। करेक्ट, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू जो है वो फाइंड कीजिए। तो r से ही आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि आपको वैल्यू क्या लेनी है। ठीक है एवरीवन, सिंस द वैल्यू ऑफ r is greater than 1, correct, now value of a is 2, Sn is 242, value of r is 3 which is greater than 1, correct, so the formula for Sn will be nothing but a in bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1। वैल्यू सभी की पता है आपको, करेक्ट। Sn की जगह पर आएगा 242, a की जगह पर आएगा 2, r की जगह पर आएगा 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अभी 3 minus 1 is nothing but 2, so this will be 242 is equal to 2 in bracket 3 raised to n minus 1 by 2। 2 will get cancelled, we'll get 242 is equal to 3 raised to n minus 1, so we'll get 3 raised to n is equal to 243, so we'll get 3 raised to n is equal to 3 raised to 5। So what you will get this as n is equal to 5। You will get n is equal to 5। Okay. Any doubts to anyone in the first bit of this particular question? Question number 3 का first bit किसी को कोई doubt? So can I jump to the second bit quickly? Yes, everyone. जल्दी से सेकंड बिट पे आगे बढ़ें। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए।
Anybody having any doubts? Sure. ओके बेटा, चलो सेकेंड बिट पर जाते हैं। सेकेंड बिट आपको बोला है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। Sum of first three terms is 125 and the sum of next three terms and the sum of next three terms correct is 27। ठीक है, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ओके, चलो देखते हैं। पहले तो ज़रा हम इसकी मीनिंग समझें। ठीक है, पहले तीन टर्म्स का जो सम है वो आपको दिया है। फर्स्ट थ्री टर्म्स को तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, S3 हमें दिया गया है 125। फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म्स मतलब समझ रहे हैं आप, S3 मतलब क्या हुआ, S1 प्लस S2 प्लस S3। अब फिर उन्होंने आपको अगले तीन टर्म यानी कि S4 S5 X6 दिया है 27। तो जब आप सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स की बात करोगे तो उसमें आपका S3 भी आ जाएगा प्लस रिमेनिंग यानी कि 27 भी आएगा, यानी कि 125 प्लस 27 हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट बेटा 152। ये बात सभी को समझी। ये अगर हम रफली बात करें तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3। सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6। ठीक है, अब इसमें उन्होंने ये मुझे दिया है 125, करेक्ट, ये इंडिविजुअली उन्होंने दिया 125। लेकिन जब मैं सिक्स टर्म्स की बात करूंगा तो उसमें पहले वाले तीन टर्म्स भी तो ऐड होंगे और ये मुझे दिया है 27। तो वन से लेकर सिक्स तक टोटल मुझे कितना मिलेगा, 152। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट बेटा? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? एनी डाउट्स टू एनीवन? ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ आर इज नॉट गिवन टू यू, लेकिन आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ना, पहले तीन टर्म्स का जो सम है वो 125 है। ठीक है, इस और फिर अगले तीन टर्म्स का सिर्फ 27 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जरूर सीक्वेंस जो है वो थोड़ा डिक्रीजिंग रहा होगा? यस और नो? पहले तीन टर्म्स का टोटल किया तो 125, छह टर्म्स का टोटल किया यानी कि 4 5 6 का टोटल किया तो सिर्फ और सिर्फ 27। करेक्ट, मतलब मेरा सीक्वेंस जो रहेगा वो कैसा रहेगा, जरूर डिक्रीजिंग सीक्वेंस रहेगा। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस एवरीवन? पहले तीन टर्म का सम 125, अगले तीन टर्म का सम सिर्फ 27। करेक्ट, सो यहाँ से ये क्लियरली पता चलता है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। करेक्ट, कैसा है हमारा सीक्वेंस, इट इज डिक्रीजिंग बेटा। ठीक है, चलो इसी बात पे हम स्टार्ट करते हैं, ये मानते हुए कि सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग है। Sn विल बी a 1 माइनस r इज टू एन अपॉन 1 माइनस r। तो S3 दिया गया है 125। ठीक है, इसका मतलब a इन ब्रैकेट 1 माइनस r क्यूब
upon 1 minus r is equal to 125. इक्वेशन 1। ठीक है, S6 दिया गया है आपको कितना 152। ठीक है, 152। So this is going to be how much? A in bracket 1 minus r raised to 6 upon 1 minus r is equal to 152, इक्वेशन 2। ठीक है, अभी हमारे पास दोनों ही इक्वेशंस हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स जो है ये बड़ा होगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन टोटल। सो आई एम गोइंग फॉर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। तो मुझे क्या मिलेगा 152 बाय 125 इज इक्वल टू a 1 minus r raised to 6 upon 1 minus r divided by a 1 minus r raised to 3 upon 1 minus r. 1 minus r will get cancelled, a will get cancelled. So this will be 152 upon 125 is equal to 1 minus r raised to 6 upon 1 minus r cube। ठीक है, अभी बहुत ध्यान से क्या मैं 1 माइनस आर रेज टू 6 को ऐसे लिख सकता हूँ दैट इट इज नथिंग बट 1 माइनस आर क्यूब इट्स स्क्वायर by laws of indices? Everyone, can I write it r raised to 6 as 1 minus r cube and its square by laws of indices? So can I say then this will be nothing but the formula of a square minus b square, जहाँ पर a रहेगा 1 और r क्या रहेगा बेटा will be r cube। yes or no बेटा, yes or no बेटा, correct। what is a plus b into a minus b? what is a plus b into a minus b? So it will be 152 upon 125. It will be a plus b 1 plus r cube into 1 minus r cube divided by 1 minus r cube। a plus b, a minus b, a square minus b square। अब ये 1 माइनस आर क्यूब हो गया कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा? यू गॉट 152 डिवाइडेड बाय 125 एज 1 प्लस आर क्यूब। तो आर क्यूब आपको मिलेगा 152 बाय 125 minus 1। r cube will be 152 minus 125 divided by 125। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा r cube is equal to 25 25 50 दो और 27 by 125। ठीक है, तो अगर मुझे r चाहिए तो सबसे पहली चीज़ मैं इसे तो लिख सकता हूँ इट इज़ 3/5 द होल क्यूब। सो r का वैल्यू मिलेगा आपको 3/5। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन in solving the second sum? Anybody having any doubts? No doubts, sure। आगे बढ़ें बेटा एवरीवन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा।
Question number 3 is also completed. क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, बोला गया है फॉर ए जीपी for a geometric progression if T3 आपको दिया गया है 20. ठीक है, और T6 आपको दिया गया है 160. पूछा है फाइंड S7. फाइंड S7 यानी कि फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स. दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड. ठीक है, तो चलो बिल्कुल निकाल सकते हैं. एस एन फाइंड करने के लिए मेरे को ए की ज़रूरत है और आर की ज़रूरत है. अगर मेरे पास ए और आर अवेलेबल है तो मैं एस एन निकाल सकता हूँ. तो वही हम कोशिश करेंगे जो हमें टर्म्स जो गिवन है उनमें से फाइंड करने की. अभी जैसे कि T3 आपको दिया गया है 20 यानी कि थर्ड टर्म इज 20. तो आपको पता है T3 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा. टी एन का क्या होता है ए आर रेज टू एन माइनस वन. तो इसका होगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20. ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए विल बी इक्वल टू 20 बाय आर स्क्वायर. से इसको बोल देते इक्वेशन 1. फिर मुझे दिया गया है T6 इज इक्वल टू 160. ठीक है, मतलब दिस इज ए आर रेज टू 5 इज इक्वल टू 160. ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ दैट ए की जो वैल्यू है करेक्ट मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ यस फ्रॉम इक्वेशन 1. यस और नो. ये ऐसे में क्या मैं बोल सकता हूँ द वैल्यू ऑफ ए I can surely substitute it over here. Do you all agree with this beta? Yes, everyone. A r raised to 5 है. A का वैल्यू मुझे पता है, मैंने निकाला है. It is 20 by r square into r raised to 5 is equal to 160. अभी by laws of indices r raised to 5 है और r square है, so this will be 20 r cube is equal to 160. कैसे a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. r raised to 5 upon r square will be r cube. यहाँ से मुझे मिलेगा r cube is equal to 8. मतलब मुझे r की वैल्यू मिलेगी 2. ठीक है, सो आई हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ r एंड आई ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ a. ठीक है, मुझे निकालना है S7. R का वैल्यू इज 2 एंड यू नो वेरी वेल 2 इज ग्रेटर देन 1. तो S7 कैसे निकालेंगे. S7 विल बी A इन ब्रैकेट R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. ठीक है, ये वाली फॉर्मूला लगेगी. ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूला को हटाता हूँ क्योंकि हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे राइट. A का वैल्यू क्या मिला है हमें 20 बाय आर स्क्वायर. मतलब A will be equal to 20 by r square right. यानी कि 2 स्क्वायर तो दैट इज 4. यानी कि a का वैल्यू तुम्हें मिलेगा 5. You will get the value of a as 5. How you put the value of r in this. ठीक है, now I can go ahead. It will be a r raised to n 2 raised to 7 minus 1
upon 2 minus 1. So this will be 5. Correct. 2 raised to 7 will be 128 minus 1 by 1. So this will be 5 in bracket 127. ठीक है, तो S7 will be equal to 127 into 5, 35, then 3, then 6. It should be 635. S7 should be 635. Any doubts to anyone in the first bit of your question number 4? Question number 4, bit number 1. Anybody having any doubts? Any doubts to anyone in question number 4, bit number 1? Yes, I can give you time to try. I don't mind. पूजा, मैं तो उल्टा चाहूँगा कि आप लोग ट्राई करो, बट पता है प्रॉब्लम ये है कि आपका ना सिलेबस बढ़ते जा रहा है, उसके लिए थोड़ा मैं खुद से करा रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं। करेक्ट, आप बिल्कुल इसे ट्राई कीजिए। चलिए, दैट्स रियली नाइस इफ यू वांट टू ट्राई। T4 is equal to 16, T9 is equal to 512 और आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ S10, दैट इज सम ऑफ 10 टर्म्स। वेयर कैन वी यूज आर स्क्वायर? विधि में नहीं समझा आपका सवाल। आर स्क्वायर और किधर यूज कर सकते हैं, मतलब आर स्क्वायर किधर आया है? यहाँ पे हमने पहले ये वैल्यू ए का यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, फिर क्योंकि मुझे ए का वैल्यू चाहिए था तो जो आर की वैल्यू मिली है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, सो दैट आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वेयर एल्स कैन वी यूज द फॉर्मूला यूज्ड इन द सम ए आर स्क्वायर? ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना उसकी हमें। करेक्ट, और किधर किधर यूज करेंगे, मतलब हमें बस टर्म चाहिए था, हमने उसका यूज किया। करेक्ट, दैट इज टी एन। करेक्ट, दैट इज वेयर इट इज बीन यूज्ड। सिंपल। चलो क्विकली ट्राई दिस सेकेंड सम, आई गिव यू फ्यू मिनट्स। 3 मिनट है आपके पास, जल्दी ट्राई कीजिए। नाउ इन दिस सम T4 इज गिवन टू मी बेटा। ठीक है, T4 मुझे दिया गया है। तो T4 यानी कि Tn का वैल्यू T4 is equal to 16. Everybody knows the formula of Tn. It is a r raised to n minus 1 is 16. यहाँ से मुझे a का वैल्यू मिलेगा 16 बाय आर क्यूब। ठीक है, इसको से फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। यहाँ पर है फिर मेरे पास T9 is equal to 512, means a r raised to 8 is equal to 512। अब मेरे पास a का वैल्यू अवेलेबल है। करेक्ट, दैट इज a r raised to 16। a का वैल्यू जो है मैं इसे यहाँ पर पुट कर दूंगा। करेक्ट, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ a हेयर मुझे क्या मिलेगा, 16 बाय आर क्यूब, और इधर है मेरे पास r raised to 8 इज इक्वल टू 512। ठीक है, नाउ केयरफुली यहाँ से बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस r raised to 8 अपॉन r raised to 3 will give you 16 r raised to 5 is equal to 512।
भाई 512 होता है 2 रेज टू 9, 16 होता है 2 रेज टू 4, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू 5, यानी कि दिस विल बी 32। ठीक है, मतलब r रेज टू 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू 5। r की वैल्यू मिल गई आपको 2। तो once you get the value of r as 2, you can also find the value of a। ठीक है, a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। a will be 16/2 cube, so value of a will be 16/8, that is 2। so you got the value of a as 2 beta। ठीक है, तो अब आपके पास सारे ही वैल्यूज आ चुके हैं, a भी आ चुका है, r भी आ चुका है। नाउ यू नीड टू फाइंड S10। S10 it will be a, that is 2 ब्रैकेट में 2 रेज टू 10 -1 अपॉन 2 - 1। ठीक है, तो 2 - 1 तो 1 ही होएगा, इट विल बी 2 इन ब्रैकेट 2 रेज टू 10 इज 1024 -1, तो ये आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट 1023, तो ये आपको मिलेगा 2046। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ S10 as 2046। Anybody having any doubts in bit number 2? Any doubts to anyone in bit number 2? Okay, कितने लोगों को आंसर मिला था खुद से? Yes, how many of you were able to find the answer by yourself? One was Ekta, another one was Pooja। और कोई जो खुद से आंसर ले ला पाया? Only 2 students were able to find the answer by themselves. Okay, even Ritika got the answer. Okay, even Jay got the answer. Okay, so to move ahead now, we need to again understand one more concept for AP and GP। ठीक है, तो चलो let us start understanding those concepts। Now carefully बेटा, again arithmetic और geometric progression में we are going to talk about the number of terms in AP, or I can say in GP। AP और GP में नंबर ऑफ टर्म्स की जो है हम लोग बात करेंगे। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि वी टॉक अबाउट कॉमन रेशियो। ठीक है, केयरफुली करेक्ट। अभी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स भी आपका एपी और जीपी जो है उसकी बात चलती है, कि अगर 3 टर्म हुए तो क्या होगा, या 4 टर्म हुए तो क्या होगा, 5 टर्म हुए तो क्या होगा। तो इधर तो पहले मैं बात करूंगा नंबर ऑफ टर्म्स की, कि टर्म्स कितने होंगे, फिर वो टर्म्स एग्जैक्टली होंगे क्या, और फिर उनके बीच का कॉमन डिफरेंस। करेक्ट, द सेम थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जीपी। एग्जैक्टली द सेम थिंग विल टॉक अबाउट जीपी। ठीक है, चलो अगर बात से पहले तो मैं इधर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूँ। ठीक है, इधर आएंगे वो टर्म्स
और क्योंकि हम एपी की बात कर रहे हैं तो इधर आएगा आपका कॉमन डिफरेंस। अगर मेरे पास 3 टर्म्स हैं एपी में, इफ देर आर 3 टर्म्स इन एपी, देन दे आर गिवन एज ए प्लस डी, ए माइनस डी। करेक्ट, इनमें कॉमन डिफरेंस है डी, मतलब डी से ये लोग बढ़ेंगे या डी से वो लोग घटेंगे। लेकिन यही अगर मैं आपको कह दूं दैट देर आर 4 टर्म्स, देर आर 4 टर्म्स इन से एपी, तो फिर आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2D हो जाता है। कैसे? इधर आता है a प्लस डी, डी के बाद फिर जो अगला टर्म आएगा दैट कम्स a प्लस 3D। रीजन बीन कॉमन डिफरेंस अभी दो दो का है, ठीक है। तो ये जो आपको 2 टर्म्स मिले, अगले जो 2 हैं इसी के सिमेट्रिक टर्म्स, यानी कि a माइनस डी, a माइनस 3D। करेक्ट, सिमेट्रिक। ऑन अ सिमिलर नोट, अब अगर मेरे पास 5 टर्म्स है, यानी कि फिर से ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस फिर से क्या रहेगा? डी। अब ये कैसे होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2D। अब इसका सिमेट्रिक ए माइनस डी, ए माइनस 2D। ठीक है, 5 टर्म्स इन जी एपी। सिमिलरली अब अगर फिर से मैं 6 टर्म्स की बात करता हूँ, दैट इफ आई से देयर आर 6 टर्म्स इन एपी, तो डिफरेंस फिर से हो जाएगा 2D। और जैसे ए सेंटर में ए नहीं आएगा, क्या आएगा? ए प्लस डी। फिर 2 ऐड करो तो ए प्लस 3D। फिर 2 ऐड करो तो यह हो जाएगा ए प्लस 5D। अब सिमेट्रिसिटी इसी का उल्टा, ए माइनस डी, ए माइनस 3D, ए माइनस 5D। करेक्ट। सो दीज वर द टर्म्स इन एपी। अगर बोला जाए 3 टर्म एपी में है तो क्या होता है, तो दिस इज हाउ इट यूज टू वर्क। सिमिलरली अगर मैं जीपी की बात करूं, जो कि हमने पढ़ना है, करेक्ट। सो नंबर ऑफ टर्म्स, नाउ इफ आई टॉक अबाउट जीपी, और इसमें कैसे टर्म्स रहेंगे विद कॉमन रेशियो, तो कुछ अब जैसे इधर एडिशन है तो एडिशन का मिरर इमेज होता है सब्ट्रैक्शन, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का मिरर इमेज होता है डिवीजन। सो अगर 3 टर्म्स हैं, कॉमन रेशियो आर है, करेक्ट, तो रहेगा ए और फिर ए आर। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है डिवीजन, तो ए बाय आर। सो दिस विल बी 3 टर्म्स इन जीपी। सिमिलरली नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 हैं तो कॉमन रेशियो हो जाता है आर स्क्वायर। तो पहला टर्म आता है ए आर, ए आर में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा ए आर क्यूब। अब मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है डिवीजन, तो ए बाय आर, ए बाय आर क्यूब। सिमिलरली अब अगर मैं आपको कहूँगा दैट देर आर 5 टर्म्स, अगेन द कॉमन रेशियो विल बी आर। तो पहले आएगा ए, फिर आएगा ए आर, फिर आएगा ए आर स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ए बाय आर और फिर ए बाय आर स्क्वायर। करेक्ट। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट 6 टर्म्स, अगेन द कॉमन रेशियो विल बी आर स्क्वायर। सिमेट्रिक जो है वो भी क्या हो जाएगा, टर्म ए आर से चालू होगा, ए आर क्यूब, ए आर क्यूब में फिर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, ए आर रेज टू 5। इधर आ जाएगा ए बाय आर क्यूब, ए आर रेज टू 5। तो दैट इज नथिंग बट जीपी। सो दीज आर द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। अगर आपको बोला जाए 3 नंबर जीपी में है और आपको वो नंबर मालूम नहीं है, तो ये 3 नंबर लेंगे आप। या बोला जाए 4 नंबर जीपी में, तो फिर यू विल टेक दी सेकेंड केस। ऐसे मैक्सिमम आपको 6 नंबर तक ही आता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाता। करेक्ट।
यही नहीं, एक और रिजल्ट मैंने जो है आपको पढ़ाई है, करेक्ट, वो मैं ज़रा रिवाइज करवा लूँ। इफ़ यू रिमेंबर हमने एक रिजल्ट की थी, इफ़ एक्स वाई जेड आर इन जीपी, देन, याद है किसी को? कहना है इसे, बताइएगा ट्रू की फॉल्स, कहना है इसे वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स जेड, यस और नो बेटा, ट्रू की फॉल्स, ये रिजल्ट हमने की है। आई एम जस्ट आस्किंग यू, ट्रू की फॉल्स, वी हैव डन दिस, करेक्ट। सिमिलरली एक रिजल्ट आपके एपी के लिए भी है, वन रिजल्ट फॉर योर एपी, इफ आई से दैट एक्स वाई जेड आर इन एपी, देन, करेक्ट। तो एपी में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि आप कहेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। तो y को ये बाजू लेके आइए, ये हो जाएगा y प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, करेक्ट। तो आप ऐसे याद रखिए, यहाँ पे क्या था? मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। इधर बोलेंगे 2 टाइम्स द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टू। या तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई टू। यू कैन ऑल्सो से y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई टू। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनी वन इन दिस केस? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस केस बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट। सबसे पहली कंडीशन, 3 नंबर्स इन जीपी, तो हम क्या बोलेंगे? लेट the 3 numbers be, let the 3 numbers be a by r, a, a r। ठीक है, अब बोला गया है देयर सम इज 21, करेक्ट। सम दिया गया है 21, मतलब a बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 21। ठीक है, यहाँ से मैं a को कॉमन ले सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो दिस आई कैन से इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स कितना दिया है? 189। ठीक है, तो इसको इधर लिख दो, वो फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकेंड कंडीशन है। सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब इन नंबर्स का स्क्वायर, सो ए बाय आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए आर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 189। ठीक है, सो बहुत ध्यान से, इसका मतलब अगर लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाऊं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189। ठीक है, यहाँ से आई कैन टेक ए स्क्वायर एज कॉमन, यस और नो बेटा? ए स्क्वायर जो है ये मैं बिल्कुल कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो मुझे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर कॉमन
1/r² प्लस 1 प्लस r² इज इक्वल टू 189। ठीक है, अब बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अभी आप सभी को करेक्ट बेसिक a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है बेटा? एवरीवन, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर? कि उसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, देखिए कैसे। इक्वेशन 1 जो है मेरे पास, ये रहा, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें a भी है और इधर a² है। ठीक है, इधर 1/r 1 और r है और इधर करस्पॉन्डिंगली स्क्वायर्स हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्क्वायर या स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स टू इक्वेशन 1। ठीक है, तो मुझे मिलेगा a इन ब्रैकेट 1/r प्लस 1 प्लस r दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। By laws of indices this will be a²। ठीक है, इन ब्रैकेट 1/r प्लस 1 प्लस r द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। करेक्ट, नाउ द स्क्वायर ऑफ 21 इज 441। ठीक है, नाउ व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर? यस, किसी को पता है बेटा? a प्लस बी प्लस सी the whole square is what? a² plus b² plus 2ab plus 2bc plus 2ac। yes or no? तो वही फॉर्मूला अभी हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इधर आएगा a² इन ब्रैकेट, लेट मी चेंज द कलर, इट विल बी a² राइट। a² यानी कि 1/r² a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2a यानी कि 2/r प्लस 2b यानी कि 2 प्लस 2c यानी कि 2r। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस स्टेप? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस स्टेप? बहुत सारे बच्चों को इस स्टेप में डाउट होता है। ठीक है, हेंस आई एम आस्किंग यू, डू यू हैव एनी डाउट्स इन दिस स्टेप बेटा? Anyone? Do you want me to write down the formula? फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या बेटा, कि याद है आपको? यस, ओके, याद है, दैट्स नाइस बेटा। चलो आगे बढ़ते। ओके, वन स्टूडेंट सेज यस लिखिए। तो a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर की फॉर्मूला होती है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब ध्यान से, बहुत 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 ध्यान से। ठीक है, बी वेरी अटेंटिव। अब यहाँ पर है मेरे पास a² ब्रैकेट में है मेरे पास 1/r²। ठीक है, प्लस 1 प्लस r²। मैं इसको एक ब्रैकेट दे देता हूँ। ठीक है, प्लस इसमें से मैं 2 बाहर ले लेता हूँ और इधर मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, तो ये मिलेगा 1/r प्लस 1 प्लस r। ठीक है, इट इज इक्वल टू हाउ मच? 441। यस और नो बेटा एवरीवन? अब ध्यान से, हाँ बेटा, बहुत 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 ध्यान से, बी वेरी अटेंटिव। अब अगर मुझे इसकी जगह पर कुछ सब्सटीट्यूट करना है, करेक्ट, बहुत ध्यान से, आई एम आस्किंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
करेक्ट. इफ ए स्क्वायर इंटू दिस टर्म इज 189, सो क्या मैं इस टर्म की जगह पर यहाँ पर लिख सकता हूँ इट इज गोइंग टू बी 189 बाय ए स्क्वायर. कैन आई राइट इट बेटा? एवरीवन, एवरीवन, कैन आई राइट इट? यस. सिमिलरली, सिमिलरली मुझे बताइए ऑन अ सिमिलर नोट, मेरे पास है a इंटू दिस 1 प्लस आर प्लस 1. क्या मैं इसकी जगह पे 21 बाय ए लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? बाकी टर्म्स को छोड़ो, मैं सिर्फ इन टर्म्स के बारे में पूछ रहा हूँ जो कि ब्रैकेट में है. क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? यस. अब इजी है. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 441. अब मल्टीप्लाई कर दीजिए. ए स्क्वायर जो बाहर है अंदर जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई होगा. पहले टर्म को मल्टीप्लाई होगा तो 189 मिलेगा. ठीक है. प्लस दूसरे टर्म को, करेक्ट, तो इट विल बी 2 इंटू 21 इंटू ए इज इक्वल टू 441. यस एवरीवन बेटा? यस और नो? यस और नो बेटा? करेक्ट. नाउ व्हाट यू विल गेट? क्या मिलेगा आपको? 189 को आप उधर लेके जाएंगे. ठीक है. तो 441 माइनस 189. ठीक है. तो ये आपको मिलेगा 42a इज इक्वल टू 441 माइनस 189. तो ये कितना मिलना चाहिए आपको? 252. So you are getting a is equal to 252 by 42. So what is going to be 252 by 42 बेटा? reduce कीजिए इसे. So 1 to 21, 126, 6. Is it turning out to be 6 beta? Are you getting the value of a as 6? Are you getting the value of a as 6? अगर a की वैल्यू 6 है तो क्या आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं? Yes or no बेटा? If the value of a is turning out to be 6, can you find the value of r? बहुत ही सिंपल. Put this a equal to 6 in equation 1 ना. a is equal to 6 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. ठीक है. So let me just continue it over here. Substituting. Yeah, I can say put a is equal to 6 in equation number 1. तो क्या मिलेगा मुझे? It is going to be 6 in bracket 1 by r plus 1 plus r is equal to 21. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 by r plus 1 plus r is equal to 21 by 6. यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 by r plus r is equal to 21 by 6 माइनस 1. ये इधर प्लस 1 है, उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 21 माइनस 6 बाय 6. तो ये मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 15 बाय 6.
15/6 को आई कैन रिड्यूस इट फर्दर, ये मुझे मिलेगा 1 + r² इज इक्वल टू 5/2. So now I can go for cross multiplication beta. If I go for cross multiplication मुझे मिलेगा 2 in bracket 1 + r² is equal to 5r. This will be 2 + 2r² is equal to 5r. ये तो quadratic equation मिल गया. 2r² minus 5r plus 2 equal to 0. तो अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 z is 4, तो -4 -1. ठीक है, सो दिस विल बी 2r² minus 4r minus r plus 2 is equal to 0. So I can take 2r as common. This will be r minus 2 minus 1 common. R minus 2 is equal to 0. So I will get 2r minus 1 and then r minus 2 is equal to 0. So product of two terms equal to 0. First term equal to 0 or second term equal to 0. तो यहाँ से मिलेगा 2r is equal to 1, r is equal to 1/2. करेक्ट. यहाँ से आपको मिलेगा r is equal to 2. r की अभी आपको दो वैल्यूज मिली है बेटा. यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ r. दो वैल्यूज मिली है, आपको दोनों के लिए निकालना पड़ेगा. ठीक है, यू नीड टू फाइंड फॉर बोथ. कैसे? देखिए. करेक्ट, आप लिखेंगे व्हेन वैल्यू ऑफ a is 6 एंड से वैल्यू ऑफ r is 1/2. हमारे तीन नंबर क्या थे? लेट मी जस्ट टेल यू. was a/r, a एंड ar. तो बस यही लॉजिक लगाना है. करेक्ट, जब a का वैल्यू 6 है और r का वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो हमारे तीन नंबर हैं a/r, a, ar. पुट कीजिए वैल्यूज. पुट द वैल्यूज. a is 6 divided by 1/2. Here it is 6. This will be 6 into 1/2. करेक्ट. तो ये आपको क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 12 6 3. ये हो गए when a is 6 and r is half. Then when a is 6 and r is 2. करेक्ट. तो अगेन a/r, a, ar. तो a/r का मतलब 6/2 a, it is 6. ar कितना आएगा? 6 into 2. दिस विल बी 3 6 12. ठीक है. अब आप बोलेंगे सर नंबर्स तो सेम ही हैं. यस, बिल्कुल सेम ही आते हैं, बस थोड़े रिवर्स ऑर्डर में आते हैं. उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. सो एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस सम बेटा? Anybody having any doubts in this sum? करेक्ट. एक बार गो थ्रू कर लीजिए इसे. गो थ्रू द फर्स्ट हाफ. गो थ्रू द फर्स्ट हाफ बेटा. Any doubts in the first half of this sum beta? No doubts. Okay. Second half देख लीजिए. Any doubts to anyone in the second half? Exams appear or not मतलब दिशा?
Can you please elaborate your question? I mean एग्ज़ाम होंगे कि नहीं? बेटा वो तो हमें भी नहीं पता. You can just hope for the best क्योंकि even we are still doubtful because still there is no such notifications, nothing is done. और I don't think आपको कॉलेज अभी तक बुलाया भी होगा. कॉलेज बुलाया है आपको एक बार भी अभी तक इन्होंने? करेक्ट कि भाई आप आइए प्रैक्टिकल अटेंड कीजिए या कुछ आपको बोला गया हो? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो वी रियली डोंट नो बेटा व्हाट विल बी डन. क्योंकि देखो यूनिट टेस्ट इनको लेनी चाहिए थी एटलीस्ट. सेकेंड यूनिट टेस्ट ऑनलाइन चाहते तो ले सकते थे क्योंकि सभी को पता है दो दो चैप्टर तो सभी ने पढ़े ही होंगे पूरे साल में. होल्ड आउट वो अलग है कि हमारे चार चार हो चुके थे, बट चाहते तो वो ले सकते थे. बट स्टिल वी रियली डोंट नो. करेक्ट. अभी कल की अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो कल जो गूगल न्यूज़ पे अपडेट आई है वो क्लियरली उन्होंने बोला है कि सिर्फ टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को ही कॉलेज जाना और स्कूल जाना अलाउड है. अगर और किसी बच्चे को उन्होंने कॉलेज में या स्कूल में देखा एक्सेप्ट दीज टू स्टैंडर्ड्स, वो भी पर्पस शुड बी ऑफ एग्जामिनेशन. सिर्फ एग्जाम के पर्पस से जाना ही अलाउड है उन्हें स्कूल और कॉलेज में. अगर पकड़ा गया तो स्कूल के ऊपर भी केस होगा और प्रॉब्लम्स होंगी या कॉलेज के ऊपर भी. सो वी नो रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आई वुड जस्ट से दैट वी शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट. ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से प्रिपरेशन रखते हैं. जैसे कि मैंने कहा है मार्च एंडिंग में आपका एक और प्रीलिम ले लेंगे. उस प्रीलिम में हमारे जो 5 या 6 चैप्टर्स मैक्स 1 में हुए हैं, 4 या 5 चैप्टर्स जो मैक्स 2 में हुए हैं, हम लोग प्रिपेयर करके रखते हैं ना बेटा. लेट अस वी ऑल बी प्रिपेयर्ड. अगर उन्होंने बोला एग्जाम देना है तो यू आर प्रिपेयर्ड. बोला नहीं देना है, एमसीक्यू देना है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहेंगे. करेक्ट. सो लेट अस वी ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट. बाकी देखते हैं. वी रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नो थिंग्स विच आर abstained in this. There are things are getting decreased over a period of time, so we really don't know. ठीक है. So we will stop here. Next lecture we will study sum of infinite terms and also will continue with the sums which are going on. ठीक है. So we will stop here. See you all in the next lecture. Until that, stay home, stay safe, have a great day ahead. Thank you, everyone. And please practice these sums minimum twice. I request you all to please practice these sums minimum twice. Okay. Thank you.